Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. So, here we are with our 37th video of Lead Code 75 Days Challenge. And by this, we are going to see a problem statement which is also related to binary tree. यस सो आई होप आप लोग अभी तक फॉलो कर रहे होगे सारे ट्यूटोरियल को और लाइक कहीं भी कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई एम हियर टू help you guys. Also, I'm planning to create a community, WhatsApp community, so where all the developers or all those people who are planning to switch, they can come, join, and they can actually ask their doubts. If they want, they can like collaborate with each other, participate in hackathons. And so mostly my main motive is to share knowledge with you guys and create a community where everyone can discuss and become a team together. So I'll let you know, uh, like I'll be adding the link of that community in my description, most probably in this video or otherwise in the next video. So by that we will be having a community of Code with Joe. So not delaying much, don't forget to like, share, and subscribe, as I'm daily planning something new for you guys. So like it's your duty to support me as well. So do share it in the LinkedIn about this and let others also know that there is something that is going to be created in 2025. So let's stand together and don't forget to like, share, and subscribe. Let's jump into our next problem statement. So let's start with the problem statement for today. And first, we are going to understand the problem statement. Then we are going to see about the dry run and the approach. And then we are going to see the code part. So without delaying, let's start. So the problem statement for today is longest zigzag path in a binary tree. So you must have heard this term zigzag. By the name only, it suggests what it means. So we are given the root of a binary tree. A zigzag path for a binary tree is defined as follow. Choose any node in the binary tree and a direction, right or left. If the current direction is right, move to the right child of the current node, otherwise move to the left child. Okay, change the direction from right to left or from left to right. So basically it's just simple. Don't get confused with right to left, left to right. It's just that we need to find in simple words. अगर simple शब्दों में समझे तो it is like we are trying to find a zigzag path. Zigzag हम लोग कैसे बनाते हैं, like this, left right या फिर right to left. अगर right से left जा रहे हैं तो फिर next right से left जा रहे हैं तो हमको फिर राइट जाना है तो फिर एक जिगजैग बनेगा. ठीक है, सिंपल से फंडा है. ठीक है, अब उसमें अपन को क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पाथ दैट वी कैन अचीव. So zigzag length is defined as number of nodes visited minus one. So it is like a path. So समझिए जैसे ये एक path है, ठीक है, ये तो हमको नंबर ऑफ पाथ्स कवर्ड करना है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन. लाइक सपोज ये देखते हैं अगर, ठीक है, ये आई कैन क्लियरली सी दैट इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. तो ये नंबर ऑफ नोड्स कितना हुआ, एक, दो, तीन, चार. दिस इज द नंबर ऑफ नोड्स, राइट. बट पाथ कितने कवर हो रहे हैं, एक, दो, तीन, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट. So this is the thing that we need to find out. We need to find out the maximum number of like zigzag path that is there in the binary tree. तो उसके लिए या तो हम लोग नंबर ऑफ नोड्स का ट्रैक ले सकते हैं या फिर हम लोग पाथ का ट्रैक ले सकते हैं. तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन अस. सो आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर होगा. यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है. सो लाइक सपोज दिस इज द नोड, वी डोंट हैव एनी लेफ्ट नोड इन दिस केस, राइट. तो हमको उसका टेंशन ही लेना है, राइट नोड में आए, ठीक है. अब देख रहे हैं राइट में हमारा लेफ्ट है, ठीक है. तो पहले हम अपन को दो केस हैंडल करना होगा, एक तो लेफ्ट साइड का, एक तो राइट साइड का. तो लेफ्ट में गए, खत्म हो गया कहानी, ठीक है. तो नंबर ऑफ पाथ्स क्या हुआ इस केस में, टू हुआ, राइट. उसको कहीं पे स्टोर कर लो. ओके, नाउ कम्स अगेन राइट. तो
तो क्योंकि हमारा उससे पहले का भी राइट रहा है तो अब अपना काउंट 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अपना फिर काउंट 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 से फिर राइट में आए, फिर लेफ्ट में आए, तो 2 पाथ्स, फिर राइट में आए 3 पाथ्स, तो टोटल 3, फिर राइट में जाएंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो टोटल मैक्स एक और स्टोर कर लो 3, अभी तक 2 था, 3 भी हो गया स्टोर। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा केस भी होगा, राइट भी होगा, तो 1 1 1, राइट वापस लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0, ठीक है। फिर ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स 2 और 3 है। तो अगर 2 और 3 में देखा जाए तो मैक्सिमम क्या होगा, इट विल बी 3, so our output will be 3. So this like shaded one is the longest path. Got it? I hope it is clear. ठीक है, अब जैसे अपन ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब जैसे ये है, इसमें दो केस है, ठीक है, एक तो लेफ्ट साइड, एक तो राइट साइड। ओके, सो लाइक सपोज अगर अपन पहला नोड से लेफ्ट में आए, ओके, फिर राइट में आए, ठीक है, काउंट कितना हुआ, जिगजैग का काउंट 2 हुआ, ठीक है। फिर लेफ्ट आए 3 हुआ, फिर राइट आए 4 हुआ, टोटल 4। बट जो भी नोड्स है उसका राइट साइड भी है, ठीक है। तो हम लोग को ट्रैवर्स करके हर एक तरह का पॉसिबिलिटीज निकालने, राइट। यू कैन सी इट क्लियरली थ्रू योर आईज, बट हमें क्या करना है, हमें वैसा कोड निकलना है कि जिसमें हमें इनपुट में कोई भी बाइनरी ट्री दे, हमें उसको फाइंड आउट करके निकालना है, ठीक है। तो सपोज ये है, ठीक है। अब इसके केस में राइट में अगर जाते हैं तो देयर इज नो नोड आफ्टर दैट, देयर इज नो चाइल्ड नोड ऑफ दिस नोड, सो अपना एक ही पाथ हो रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता, इट विल बी 0। ओके, सो लाइक सपोज फिर इधर आए, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं बनता बिकॉज देयर इज नो नोड, सो टोटल 4 इज देयर। ओके, आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया होगा। जैसे एक और है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके, लाइक सपोज लेट मी टेक इट थ्रू दिस। नाउ दिस इज द नोड, ओके, 1 second, okay, let me choose the color first, okay. So this is our node, okay, where is it, okay, this is our, I am sorry guys, okay, okay, so fine, cool, clear. So okay, our color is, so we need to get the color first, okay. So हमारा यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, पहला नोड। अब अपने पास क्या चॉइस है, दो चॉइस है, या तो आप लेफ्ट जाओगे या तो राइट जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें सारा पॉसिबिलिटीज को ट्रैक करना है, तो सबसे पहली बात लीफ तक पहुंचना है, पूरा ट्रैवर्स करना है, वो भी ऐसे 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 ऐसे, राइट। दैट मीन्स लाइक वी आर ट्रैवर्सिंग चिल्ड्रन के लेवल में, राइट। ब्रेड्थ वाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डेप्थ वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्थ वाइज करेंगे, दैट मीन्स डीएफएस। क्लिक कर गया, क्योंकि अगर आपने पहले का वीडियोस देखा है, आपको क्लियरली क्वेश्चन देख के समझ आया कि अपने को डीएफएस करना है। अब डीएफएस में भी कैसे करेंगे वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट में आए, ठीक है, एक पाथ आया अपना ये वाला, राइट। फिर यहाँ पे लेफ्ट आए, लेफ्ट, फिर अपना राइट हुआ, राइट, क्योंकि कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, ये हुआ। फिर अपना यहाँ पे आया, 5 में आया, ठीक है। तो टोटल पाथ्स कितना हुआ, 3 हुआ। आई थिंक दिस इज द सेम एग्जांपल दैट वी हैव सीन, बस यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स लाइक रिटन अलग तरीके से। फिर यहाँ पे आया, तो क्योंकि अगर फिर से ये हुआ तो स्टार्ट हम लोग स्क्रैच से करेंगे, लाइक यहाँ पे अब जितना भी पास्ट कर रहा है वो कट जाएगा, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर से एकदम स्क्रैच से, तो 0 हो जाएगा जिगजैग काउंट यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाएंगे अपन, राइट 1 हुआ एक पाथ, फिर लेफ्ट 2 हुआ, तो ये दोनों का मिला कितना हुआ, 2, 2 पाथ्स हुए। और यहाँ पे कितना था अपना, 3 पाथ्स हुआ, तो टोटल मैक्सिमम कितना होगा, 3। सो वी हैव टोटल 3 पाथ्स, ओके। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है नहीं है। उसके बाद अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने पे जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। So let's solve this problem statement and understand what we are going to do. Just remember a few things from the last few videos. So if you can recall it, otherwise I would request, if you haven't watched the past few videos on binary tree,
kindly go and watch that. It will be very helpful for you guys in interviews or even in clearing the concepts of binary tree. सो अगर आपको याद होगा, लास्ट फ्यू वीडियोस में एक पैटर्न बन रहा था, एक हेल्पर फंक्शन, दैट इज डीएफएस का फंक्शन अपन बनाते थे और अपन चेक करते थे कि अगर अपना नोड 0 है, नॉट अवेलेबल है, इफ नॉट नोड, अपन रिटर्न कर देते थे। अगर वो काउंट वाला है तो काउंट रिटर्न में 0 कर देते थे, बस जस्ट रिटर्न कर देते थे। तो पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पे अपन को एक वेरिएबल होगा जो रिटर्न करना है, राइट? We need to return the max path that we have encountered so far, right? Which satisfy the condition. The condition is it has been zigzagged till far, like whatever the max path we have covered, it was following the pattern, that is right, left, right, left, right, otherwise left, right, left, right, left. That is the condition of our zigzag, right? तो बस अपन को यही चीज करना है। तो अपन एक वेरिएबल बना देंगे, सेल्फ डॉट मैक्स पाथ, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन आते हैं फंक्शन पे। सो बेसिकली उस फंक्शन को बस अभी लिख देते हैं, डेफ डीएफएस एंड, ठीक है, सपोज पास, ठीक है। अब इस फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, डीएफएस, ठीक है, डीएफएस कॉल करेंगे, क्या पास करेंगे, अपने पास क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, राइट? पैरामीटर्स देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। रूट का क्या पाथ होगा, दो पाथ, दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो अपन लेफ्ट में जाएंगे या तो अपन राइट में जाएंगे, राइट? सो रूट डॉट लेफ्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर रूट डॉट लेफ्ट जा रहे हैं तो नेक्स्ट अपन को कौन सा डायरेक्शन लेना है, राइट लेना है, राइट? सो अपन लिखेंगे यहाँ पे राइट, ओके। और यहाँ पे करंट पाथ क्या डालेंगे, मतलब एक पाथ कवर किए, राइट? अपना पाथ कितना कवर हुआ है, एक ही पाथ हुआ है। दो नोड, अगर जैसे रूट नोड से लेफ्ट नोड में आए, उस बीच में कितना पाथ था, एक पाथ था, तो एक पास करेंगे, ओके। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अपन रूट नोड से राइट नोड पे गए, तो डीएफएस रूट डॉट राइट, राइट नोड में गए। अब अपन राइट नोड में तो चले गए, उसके बाद अपन को कहाँ पे जाना है, लेफ्ट नोड पे जाना है, ठीक है। तो द डायरेक्शन दैट विल बी फॉलोड बाय द, सॉरी, am I audible? Yeah. So just a minute. हाँ, so if I'm in the right node, रूट से अपन राइट नोड पे आ गए, नेक्स्ट अपन को कहाँ पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है। तो द डायरेक्शन टू फॉलो इज, okay, this one, and the path is 1, current path is 1. So okay, so till here we are clear that there is two possibility, either we will go left or right, right? If we'll go left, the next direction will be right, so that's why we are passing here right, because we need to keep track of that कि next direction क्या होगा, right? Because अपन जो पास करेंगे वो ये एक नोड की तरह जाएगा, right? तो हमको पता होना चाहिए कि अब नेक्स्ट अपन को कहाँ पे जाना है, राइट नोड के पास जाना है। और उसके बाद करंट पाथ अभी तक का जो कवर्ड है वो हम लोग दे रहे हैं, तो करंट पाथ ऑब्वियसली रूट से लेफ्ट की ओर में एक ही पाथ कवर हुआ है, तो वो चीज है। अब आते हैं अपन अपना हेल्पर फंक्शन के पास, द हेल्पर फंक्शन विच विल हेल्प अस in actually creating or recursively getting the path of the zigzag, ठीक है। तो अब पास जो लिखा हुआ था उसको हटाते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे पहले क्या क्या चीज आएगा, ये एक नोड की तरह है, सो नोड कॉमा, यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन कॉमा कर पाथ, ठीक है, दिस इज आवर करंट पाथ, ठीक है। I hope this is crystal clear because I've already make you understand कि क्या फॉलो कर रहे हैं, क्यों हम लोग लिख रहे हैं और किस लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दो चीज। अब बेस कंडीशन क्या होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, कि अगर अपना इफ नॉट नोड, अगर नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो सिंपल सा बात है भाई, रिटर्न कर दो, कोई मतलब ही नहीं बनता ना आगे चलने का, ओके। अब अपन को क्या करना है, एक तो मैक्स पाथ जो अभी तक कवर कर रहे हैं उसको अपडेट करना है, क्योंकि हमें हर एक रिकर्शन में चेक करना है, मैक्स पाथ को हमेशा अपडेट करते जाना होगा। तो मैक्स पाथ विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ सेल्फ डॉट मैक्स पाथ कॉमा कर ऑफ पाथ, राइट? ये हो गया हमारा।
अब आता है मेन रोल, दैट इज द डायरेक्शन का रोल. ओके, सो इफ डायरेक्शन इक्वल टू राइट या लेफ्ट, सपोज, ठीक है, अगर अपन को बोलता है लेफ्ट जाने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, डीएफएस जो भी नोड है उसका लेफ्ट में चले जाओ भाई. ठीक है, हम लोग को ये चीज क्या बोल रहा है, ये जो डायरेक्शन है ये अपन को बोल रहा है कि अपन को अब चूज करना है उस नोड का लेफ्ट नोड को. ठीक है, बिकॉज वी नीड टू गो टू लेफ्ट डायरेक्शन, कॉमा, अगर लेफ्ट है तो नेक्स्ट डायरेक्शन हम लोग को क्या बताना है कि तुमको राइट जाना है, तभी तो zigzag पाथ फॉलो होगा, राइट. और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, कर पाथ इक्वल प्लस 1, करंट पाथ प्लस 1. ठीक है, अब ये तो हुआ अपना, ठीक है, लेफ्ट का हुआ, राइट को भी तो कंसिडर करना है, बिकॉज द थिंग इज अगर आप यहाँ पे आओगे तो हर एक पॉसिबिलिटी में, ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, हर एक को ट्रैवर्स करते जाना है, राइट. हर एक को ट्रैवर्स करके हमें मैक्स नोड, मैक्स सो फार का पाथ अपन को कैलकुलेट करना है. तो हमारा मोटिव क्या है, to traverse all the possible direction and get to know the max so far path. तो उसके लिए अगर अपन को डायरेक्शन बोला गया था कि आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो लेफ्ट जाना है, दैट इज फाइन. तो लेफ्ट अगर आ गए, हम लेफ्ट नोड को चूज कर लिए, नेक्स्ट डायरेक्शन राइट है वो भी बता दिए, बट इसका राइट नोड को भी तो हम लोग को कंसिडर करना है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नोड डॉट राइट, वी आर गोइंग अगेंस्ट द थिंग. ठीक है, डायरेक्शन अपन को लेफ्ट बोला था जाने के लिए, बट अपन अब राइट जा रहे हैं, दैट मीन्स द प्रीवियस डायरेक्शन दैट वाज फॉलोड, इससे पहले जो पाथ फॉलो किया होगा वो ऑलरेडी राइट होगा, राइट. तो पहले तो यहाँ पे लेफ्ट डालेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 से. फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है. ये डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो पाथ था वो क्या था, अगर डायरेक्शन इक्वल टू लेफ्ट है दैट मीन्स ये वाला कंडीशन हुआ, राइट, राइट, ओके, ये वाला कंडीशन हुआ, दैट मीन्स इससे पहले अपन क्या किए हैं, अपन राइट वाले नोड पे थे, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो भेज रहे हैं वो राइट भेज रहे हैं, और जिगजैग हमारा फॉर्म होते जा रहा है, तो सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए करंट पाथ +1 कर रहे हैं. दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उसका लेफ्ट नोड को भी तो कंसिडर करना है ना. तो जब हम लोग लेफ्ट नोड या लेफ्ट पाथ, दैट इज लाइक सपोज उससे पहले राइट था और फिर राइट में अगर हम जा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग ब्रेक कर रहे रूल, जिगजैग नहीं रहा अब. तो जिगजैग अगर नहीं रहा, जैसे ये केस है, ठीक है, सपोज 1, this one, I'm talking about the image, see the image. So like suppose this is the one, just check the cursor, this is the one, this is the node. ठीक है, अपन आए राइट में, ओके, इसके लेफ्ट में गए तो ठीक है, फाइन, करंट पाथ +1, बट फिर राइट में अगर आएंगे तो अपन को फिर से स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, और उस केस में ये बन जाएगा रूट और ये बन जाएगा हमारा पहला पाथ. आई होप इट इज क्लियर क्यों हम यहाँ पे 1 पास कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे करंट पाथ +1 कर रहे हैं, बिकॉज इस केस में अपना, ठीक है, zigzag is being followed, ठीक है, whereas in this case अपना zigzag is not followed. और नॉट फॉलोड भी मत बोलो, द थिंग इज कि अपन को लेफ्ट राइट दोनों केस को कंसिडर करना है, राइट. तो अब भले ही हमको बोला जा रहा है कि आपको जिगजैग पाथ के हिसाब से आपको राइट जाना है, ठीक है, या वैसा कुछ, यू विल हैव टू गो टू, लाइक सपोज यू नीड टू गो टू राइट, बट द थिंग इज कि आपको लेफ्ट वाले को भी तो कंसिडर करना है ना. तो इस केस में नॉट फॉलो, दैट्स व्हाई द करंट पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम द स्क्रैच, कर पाथ स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, सॉरी स्क्रैच. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ये हुआ, ये एक चीज हुआ. एल्स, अब अपन एल्स किस चीज के लिए देख रहे हैं, तो डायरेक्शन अगर हम लोग को लेफ्ट दिया हुआ था तो उस केस में ये एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, यहाँ पे दैट मीन्स डायरेक्शन इक्वल टू राइट दिया हुआ है, तो अब अपन जाएंगे राइट में और यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट
सेम थिंग, यहाँ पे अपन का हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ पे अपन का हो जाएगा राइट। बस, और कुछ नहीं करना अपन को। यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट मैक्स पाथ, जो चीज हमारा मैक्स पाथ कैलकुलेट करेगा, राइट। लेट्स सी क्या होता है। ओके, मैक्स पाथ इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ डॉट मैक्स पाथ। ओके ओके ओके, वन सेकेंड, ओके वन सेकेंड, सेल्फ डॉट मैक्स पाथ। ओके ओके, फाइन फाइन। सो हमारा यहाँ पे मैक्स पाथ है, यहाँ पे अपन सेल्फ डॉट मैक्स पाथ तो डिफाइन किए हैं, राइट। मैक्स पाथ, ओके ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, सेल्फ कॉमा हो गया जिसकी वजह से इशू था सारा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। यस, एंड इसी के साथ हमारा टेस्ट केसेस पास हो गया। लेट्स सबमिट दिस, एंड आई होप जैसा मैंने बताया है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, लेट मी नो, because we are traversing all the nodes, so the time complexity remains on। ठीक है, we visit each node once, right। ठीक है, हर एक का पॉसिबल लेफ्ट राइट नोड ले रहे हैं, उसके हिसाब से करंट पाथ को अपडेट कर रहे हैं, और ऑल्सो वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ द मैक्स पाथ सो फार, राइट। सो इसके साथ हम लोग का लॉन्गेस्ट एग्जैक्ट भी खत्म हुआ। एंड मतलब आई नो, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी इशू हो कहीं पे, सो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी, कमेंट डाउन, एंड आई आंसर, आई मेक श्योर कि आप लोग को इशू ना हो। कम्युनिटी चैनल इसीलिए बनाया गया है कि जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, यू कैन आस्क देयर। So don't forget to join that channel, and make sure to like, subscribe, share it on LinkedIn, share it among your friend circle, and yeah, that's it. Thank you guys.